Hello students, how are you all? So, we're gonna start with a new chapter that is reproduction, in which we'll be studying that how do the organisms they reproduce. Means we all know the organisms are either living or non-living. So we are talking about the living organisms like the plants and animals, in which we'll be study about a new system, a new life process that is called the reproduction. Alright, so if we'll talk about the reproduction, the definition comes here is the process by which organisms they produce new individuals to continue their race. रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है इन विच द ऑर्गेनिजम्स दे प्रोड्यूस न्यू इंडिविजुअल्स टू कंटिन्यू देयर रेस. ऑलराइट, सो ह्यूमंस फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें दैट ह्यूमंस दे गिव बर्थ टू ह्यूमन बेबीज. And the another example, cats they produce kittens, dogs produce puppies. All right, the flowers produce the seeds, and the seeds they ultimately after maturing they come out into the flowers. Right, so it is the inherent property or the tendency of an organism to reproduce its progeny. The progeny is the babies, is the offsprings, is the new generation. The progeny is the new generation which is being coming out from the existing one, from the parent. Alright, so this is the process of reproduction which ensures the continuity of life on earth. Means अगर कोई organism है, either it is living like a plant or the animal, उस organism को इस जनरेशन को आफ्टर जनरेशन तक फॉलो करने के लिए रिप्रोडक्शन वाले पार्ट को, रिप्रोडक्शन वाले प्रोसेस को कंटिन्यू करना होगा. If reproduction doesn't exist in the earth on the life, so what happens? अगर exist ही नहीं करता है reproduction, then the organisms become extinct. Extinct means कि वो अपने आप ही vanish होते चले जाएंगे organisms. Right? So reproduction is an important aspect, important process of being remaining into the race. एक रेस में जिस रेस में सब ऑर्गेनिजम्स भाग रहे हैं कि अपनी जनरेशन को आगे मूव ऑन करें, फॉरवर्ड करें, सो दैट उनके जीन्स एवर आफ्टर लॉन्ग लास्टिंग बनते चले जाएं और उनके अंदर जितना भी चेंजेस आए. देखिए, अगर एक ह्यूमन है, वो ह्यूमन अगर किसी प्रोजेनी को बर्थ करता है, वो जनरेट करता है इन द नेक्स्ट जनरेशन, तो उनके कुछ जेनेटिक चेंजेस होंगे, जीन्स के अंदर कुछ चेंजेस आएंगे. जो जीन्स के अंदर चेंजेस आएंगे वो उसके बाद फिर वो मॉडरेट होके या और मॉडर्न फॉर्म में क्रिएट होके फिर नेक्स्ट जब प्रोजेनी कन्वर्ट होगी उसमें फिर वो कुछ और चेंजेस आएंगे. तो जेनेटिक वेरिएशंस दे कंटिन्यू एवर आफ्टर इन द रेस. राइट, सो दिस इज द रिप्रोडक्शन. ऑल राइट, सो इफ वी टॉक अबाउट द रिप्रोडक्शन, द बेसिक of the reproduction is organisms they look just similar because their body designs are similar of that their parents के बिल्कुल body design की तरह similarity show करते हैं new progeny. For example, if you're watching the image of a kangaroo, so you can see the progeny of the kangaroo is just similar to that of the parent, and it is just because of the copying of DNA के अंदर कॉपी होती है which inherits into the new generation. Okay, next the introduction part comes. In the reproduction of organisms we are talking about the lifespan. As we all know, we are living organisms, we have a definite lifespan. If we talk about the plants, they have indefinite. Plants they persist about thousands and thousands of years, they remain stand. But if we talk about the animals, they have their definite lifespan. For example, humans हैं तो उनका maximum से maximum अगर इस जनरेशन की बात करें तो 75 प्लस टू 80 इतना ही है, उससे ज़्यादा कोई ऑर्गेनिज्म है इट कांट सर्वाइव इन नाउ डेज. अगर हम आज की जनरेशन की बात करें, आज की सिचुएशन की बात करें. Right, so the period of birth to natural death of an organism is called its lifespan. All right, no individual is immortal. Immortal का मतलब समझ रहे हैं ना, कि वो आजीवन उसको एक अमर रहने का,
अमर रहने का जो मिला हुआ है कि ऐसा कोई इंडिविजुअल नहीं है जो अब तक भी अमर है एक्सेप्ट फॉर द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को की जो रेस है ना, वो इस अकॉर्डिंग बढ़ती है कि वो एक सिंगल सेल है विच जनरेट इनटू अनदर ऑर्गेनिज्म विच इज़ जस्ट सिमिलर। वो बिल्कुल से साइज़ में भी, सेल के स्ट्रक्चर वाइज भी, फंक्शन वाइज भी, हर चीज़ में यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स बिल्कुल सेम कॉपी आगे डिलीवर करता है। पेरेंट अपनी जो न्यू सेल्स हैं वो बिल्कुल जस्ट सिमिलर टू द पेरेंट सेल। तो इसीलिए उनको हम बात कर सकते हैं कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स दे seems like immortal but not the multicellular ones, as because it continue its life in the progeny by fission। उनके अंदर सिर्फ फिजन होता है, फ्रेगमेंटेशन, फिजन ये सब रन करते हैं, मीन्स एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन रन होता है उनके अंदर। ऑलराइट, so let's take a look on the lifespan of some organisms. If you're watching an elephant's age, that it pertains about 60 to 70 years. A rose flower has about 100 years. A dog has 15 years lifespan. A buffalo or cow, they pertain about 20 to 25 years. You can see a banyan tree which sustain about the 400 years। अब देख रहे हैं आप, थाउजेंड्स तक भी, हंड्रेड्स तक भी सेंचुरी क्रॉस कर जाते हैं, तब तक कि आप से भी आगे आने वाली जनरेशन और उससे भी आने वाली जनरेशन, उससे आने वाली जनरेशन तक भी, आपकी चौथी पीढ़ी भी क्रॉस कर जाएगी, तब तक भी आपको बैनन ट्री इतना पुराना दिख सकता है। नेक्स्ट टू नेक्स्ट टू नेक्स्ट टू नेक्स्ट जनरेशन को भी ये बैनन ट्री विजिबल हो सकता है। इतना लंबा लाइफ स्पैन होता है इनका। अब ये देखिए, दिस इज़ द बनाना प्लांट, बनाना ट्री है ये। दिस स्टेन्स अबाउट 2 to 4 years। Alright, this is the insects lifespan. Insects and the birds, the sparrow retains about 5 years, and a parrot about 140 years, a butterfly 1 to 2 weeks, and a housefly common, it only sustain about the 30 days। See, if we are talk about the crop fields, ये आप सभी जानते हैं कि 3 to 4 months का ही एक गैप लगता है, तो कोई क्रॉप की हार्वेस्टिंग और कल्टीवेशन ये सब चीज़ इतने भी टाइम पीरियड में हो जाता है, तो उनका सिर्फ हार्डली कोई 4 months का लाइफ स्पैन होता है। उसके बाद फिर कोई न्यू क्रॉप ग्रो होती है न्यू फील्ड में। एंड अ क्रो, इट हैज़ अबाउट द 15 years, राइट। दिस कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ इज अचीव बाय द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। आप समझ पा रहे हैं? 15 साल तक क्या करेगा ये? 15 साल तक ये अपना रिप्रोडक्शन करके फिर और नंबर ऑफ़ जितनी प्रोजेनी है उनको जनरेट करेगा। उनको उस लाइफ में ओरिजिनेट करने के लिए यही मेन रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए। फिर एक क्रो को अगर ग्रो मतलब जनरेट कर रहा है, कॉपी बना रहा है, डिलीवर कर रहा है, सो वही क्रो फिर क्या पता 2 का 4, 4 का 8, इस तरीके से लाइफ में जो ऑफस्प्रिंग्स का नंबर है वो बढ़ता चला जाता है। सो दिस इज कॉल्ड द प्रोडक्शन ऑफ द न्यू लिविंग ऑर्गेनिजम्स, न्यू इंडिविजुअल्स। सो दिस इज द बेसिक we can say the definition that reproduction, it is a process by which living organisms they produce new individuals of the same species, and it is necessary for the survival and increase in the population of a species. It is necessary for the survival and increase in the population. So these are the two main points under which the reproduction is considered. सर्वाइवल के लिए और पॉपुलेशन के इंक्रीमेंट के लिए ही रिप्रोडक्शन सबसे इम्पॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस है। ऑलराइट, हमें सर्वाइव करना है तो किसी के लिए तो करना है ना, अपने लिए भी करना है। अपनी हम आगे रिप्रोडक्टिंग जो कैपेसिटी है, जब हम उसको देखेंगे, प्रोजेनी को देखेंगे, फिर वो बड़े होंगे, हमें उनके लिए भी सर्वाइव करना है, हमें उनको पालना पोसना है, उनके सर्वाइवल के लिए हमें फिर जीवित रहना है। और ये देखिए, इनडायरेक्टली दिस इज़ इंक्रीजिंग द पॉपुलेशन ऑल्सो। If organisms do not reproduce, their population will decrease and the species will become distinct. As I have mentioned this line before, मैंने ये पहले भी अभी डिस्कस किया था कि अगर पॉपुलेशन रिप्रोडक्शन रन नहीं हुआ लाइफ में,
हमारी लाइफ का पार्ट में से रिप्रोडक्शन अगर डिडक्ट हो जाता है, नेग्लेक्ट हो जाता है, देन द पॉपुलेशन विल बिकम एक्सटिंक्ट. हमारी जब जीन्स ही आगे फॉलो नहीं होंगे, देन विच काइंड ऑफ एनिमल वी आर. हम किस टाइप के ऑर्गेनिज्म होंगे, किस टाइप के एनिमल्स हमें कंसिडर किया जाएगा, हमें किस उसमें लिखा जाएगा. हमें तो एक्सटिंक्ट करा दिया जाएगा. फिर हम ऑलरेडी एक्सटिंक्ट हो जाएंगे जब हमारे जीन्स ही आगे प्रमोट नहीं हो रहे हैं. ऑलराइट, सो दिस रिप्रोडक्शन इज बीइंग डन बाय द हेल्प ऑफ द कॉपिंग ऑफ डीएनए. डीएनए की खुद की कॉपीज बनते हैं. एज यू ऑल नो, वी आर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स. वी आर मेड अप ऑफ सेल्स एंड सेल्स हैव द डीएनए inside the nucleus. So DNA, that is deoxyribonucleic nucleic acid, it is present in the chromosomes in the nucleus, and this important part is responsible for the transfer of the characters also. For example, if the parent has tall height, the means the father and the mother both have tall height, then definite chances are there that the progeny will be having tall height. हाइट उनकी टॉल ही रहेगी. वो कोई 1% चांस है दैट कि अगर वो शॉर्ट हो जाए, बट मैक्सिमम चांसेस आर ऑफ द टॉल हाइट. बच्चे की हाइट भी टॉल ही होगी. इफ़ मदर हैज़ ब्राउन आइज, इफ़ फादर हैज़ ब्राउन आइज, देन डेफिनेटली चाइल्ड हैज़ ब्राउन आइज, बिकॉज जीन्स आर बीइंग ट्रांसफर्ड ऑन टू द नेक्स्ट जनरेशन. राइट, जीन्स ट्रांसफ़र कर रहे हैं एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में बाय द प्रोसेस कॉल्ड रिप्रोडक्शन. एंड ड्यूरिंग द रिप्रोडक्शन, द रिप्रोडक्टिव सेल्स, जो सेल्स हैं, रिप्रोडक्टिव सेल्स हैं, दे प्रोड्यूस 2 कॉपीज ऑफ द डीएनए, जो दो सेल में अलग अलग कन्वर्ट हो जाते हैं. तो देखिए, आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल, इफ आई मेड अ सेल, अगर मैंने एक सेल बनाया है हियर, एंड यू ऑल नो इट कंसिस्ट अ क्रोमोसोम इनसाइड द न्यूक्लियस. ये क्रोमोसोम का शेप विच इज़ कंपोज ऑफ द डीएनए. So DNA first it copies itself, it replicates itself by the process called the replication. Replication means duplication of the chromosome. तो DNA यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, कंटेंट डबल हो जाएगा. डबल इसीलिए सो दैट जितनी भी अमाउंट ऑफ कॉपीज आपकी जनरेट होंगी सेल के थ्रू, the equal amount of DNA will be transferred to the copies, transferred to the progenies. तो यहाँ पर 2 हैं, and a cell maximally give rise to the 2 daughter cells. These are called the daughter cells, in which one chromosome transfers here and the another chromosome transfers here. So now you can see the process by which the DNA copies and the chromosome, or we can say the DNA, will transfer to the progeny, which is exactly like similar to that of the parent. So this way the organism just look similar to their parents. The new organisms, they look similar to their parents. All right. So the DNA copies, they will be similar but not identical to each other. तो जितनी भी वो DNA copies हमारी बनी थी, एक सेल के थ्रू बनी थी, it was just similar. वो दिखने में similar है but not identical. Similarity and identical, both terms are different from each other. If I can say in a class that the person that the girl, she is very intelligent, and the boy similarly, he is also very intelligent. But if I can check it with the expression wise, with the face wise, with the way of talking, way of walking, वो सबका बिल्कुल different हो सकता है. दोनों persons का एक दूसरे से different हो सकता है. The girl, she has different expressions, she had different impressions, and the girl and a boy similar to opposite to that, वो उसके अपने अलग ही वे ऑफ टॉकिंग एंड वॉकिंग हो सकता है. और फिजिक वाइज भी देखिए, आप फेस वाइज भी देखिए, तो दे आर नॉट आइडेंटिकल विद ईच अदर, बट दे आर जस्ट सिमिलर इन वन पर्सपेक्टिव, दैट इज इंटेलिजेंस. तो इसीलिए मैं आपको ये समझाना चाह रही हूँ कि डीएनए कॉपीज सिमिलर हो सकती हैं, वो आपको सामने से सिमिलर दिख सकती हैं, बट नॉट आइडेंटिकल, बिल्कुल रेप्लिका नहीं होती हैं. कि अगर एक पर्सन ने हाथ ऊपर किया तो दूसरा पर्सन भी हाथ ऊपर करेगा. उसके अंदर मतलब अगर एक ही पेरेंट के फॉर एग्जांपल 2 बच्चे हैं, तो आप खुद ही देखिए ना कि आपके सिबलिंग से कितना डिफरेंस है. फेस वाइज देखिए, फिजिक वाइज देखिए, कैसे भी देखिए. बच्चा एक थोड़ा गोरा हो सकता है, दूसरा सांवला हो सकता है. बच्चे की एक हाइट थोड़ी नॉर्मल, दूसरे की ज़रूरी नहीं उतनी बराबर हाइट हो, क्या पता थोड़ी कम थोड़ी ज़्यादा हो. सो आइडेंटिकलनेस विल बी डिफरेंट बट द कॉपीज विल बी सिमिलर.
Okay, so the new individuals, they have slight variations from their parents. This is the point which I am trying to explain you, which I am trying to teach you, that ki slightly variations should be there in two siblings, or we can say the DNA copies from the parents. So this is the basis for variations and evolution of a new species. So evolution is a new term for you. Evolution is, जैसे मैंने रिप्रोडक्शन बताया कि नए ऑर्गेनिजम्स के अंदर एक स्लो एंड स्टडी चेंज. If I can speak about the human beings, that they have been originated, or we can say they have been evolved from the monkeys, the apes. Can you believe it? Yes, they exist, they are present here, and they are the ancestors of the, because they belong to the ancestors of the apes. ये mammals की कैटेगरी को इसीलिए बिलोंग करते हैं बिकॉज दे कम या दे इवॉल्व फ्रॉम द एप्स यानी आपके जो मंकीज वगैरह होते हैं, राइट. सो दिस इज कॉल्ड द इवोल्यूशन, अ स्लो एंड स्टडी चेंज इन द लाइफ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. दिस इज द इवोल्यूशन. एक ऑर्गेनिज्म की लाइफ में एक स्लो चेंज आना. इफ आई कैन टॉक अबाउट द डायनासोर, इट इज़ ऑल्सो रेप्टाइल. इफ आई कैन टॉक अबाउट द लीजर्ड, इट इज़ ऑल्सो ए रेप्टाइल. सो दिस बिलोंग्स टू द फैमिली ऑफ डायनासोर्स, या मैं कह सकती हूँ डायनासोर्स बिलोंग टू द फैमिली ऑफ लीजर्ड्स. तो ये एक रेप्टाइल एक ही किसको कैटेगरी को बिलोंग करते हैं. ऑल राइट. सो दिस इज कॉल्ड द इवोल्यूशन ऑफ अ न्यू स्पीशीज. एंड द इम्पॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन इज, इफ़ आई टॉक अबाउट वेरिएशन, कि सबके अंदर स्लाइट चेंजेस हैं, स्लाइट वेरिएशंस हैं एक दूसरे से. सो व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस बिहाइंड इट इज़, सबका बॉडी डिज़ाइन डिफरेंट है. सब अपने जीन्स को इस लाइफ की रेस में कंटिन्यू करने के लिए बढ़ावा दिए जा रहे हैं. ऑल राइट. सारे ऑर्गेनिजम्स डिफरेंट है. इफ़ आई कैन से कि सारी पूरी दुनिया में, हमारे वर्ल्ड में, दिस नेचर, इफ़ it contains only one kind of gene, only one kind of organism, then how does the nature looks like? अगर नेचर में सिर्फ एक ही टाइप का ऑर्गेनिज्म होता तो नेचर इतनी आपको ब्यूटीफुल तो अभी दिखाई ही नहीं देती. सो वेरिएशंस शुड बी इम्पॉर्टेंट फॉर द लाइफ ऑल्सो. अगर ह्यूमन बींग्स ही ह्यूमन बींग्स होते हैं, सो आप फ्लावर्स को, आप एनिमल्स को, इन सबको कैसे देख पाते, इस दुनिया को कैसे देख पाते. सो द ब्यूटीफुल नेचर इज़ बिकॉज ऑफ द वेरिएशंस. ऑल राइट. एंड ऑल्सो द इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स कि वेरिएशंस क्या करती हैं, ये लाइफ को जीने का एक प्रमोशन दे देती हैं कि लाइफ को जिया कैसे जाता है. अगर मैं बात करूं कि दैट इफ़ इन द वार्म टेम्परेचर कैन यू स्टे फॉर 1 hour इन द हॉट टेम्परेचर, आई गेस नहीं, क्योंकि इतने हैवी वार्म टेम्परेचर में आप लोग सस्टेन नहीं कर पाते, बिकॉज यू आर नॉट, आप उसके लिए हैबिचुअली नहीं है, आपकी वो जो बॉडी है उसके लिए सूटेबल ही नहीं है, कंफर्टेबल नहीं है. ठीक है. तो इफ़ इन्वायरमेंट कॉन्स्टेंटली चेंजेस ड्यू टू द टेम्परेचर, द क्लाइमेटिक कंडीशंस और एनी काइंड ऑफ डिजास्टर, तो ऑर्गेनिज्म अगर उस चीज़ में एडजस्ट कर लेता है, then he could not he should have the less chances to become extinct. But if he could not adjust into that environment, then their chances will be more prone to the extinction. एक्सटिंक्ट होने के चांसेस उसके बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, जो उस टेम्परेचर में अपने आप को कंफर्टेबल, सूटेबल ना फील कर पाए. और राइट. जैसे मच्छर होते हैं, फॉर एग्जांपल मस्कीटो की बात करूँ, उनका लाइफ स्पैन कितना होता है, हार्डली कोई 2-3 वीक्स का, बस मैं तो 2-3 वीक्स पे बहुत कम है, 24 आवर्स है, सॉरी 2-3 वीक्स एक हाउस फ्लाई का कह सकते हैं, 24 आवर्स का ही है. क्योंकि आपको पता है बरसाती मौसम में अलग टाइप के मच्छर होते हैं, आपके समर्स में कुछ अलग टाइप के वो आएंगे, जैसे ये मलेरिया वगैरह, डेंगू वगैरह कॉज करने के जो पैरासिटिक जो वो हैं, आपके पैरासाइट्स वगैरह भी हैं, और जो मस्कीटोज़ हैं, वेक्टर्स हैं, तो सब चेंज होते हैं ड्यूरिंग द चेंजेस इन द इन्वायरमेंट, इन द टेम्परेचर. राइट. तो सबकी अपनी अपनी एक लाइफ स्पैन होती है. इट डिपेंड्स ऑन द वेरिएशंस, हाउ दे आर वेरिएटेड फ्रॉम ईच अदर. हम ये ह्यूमन बींग्स ही क्यों इतना लंबे टाइम तक अपना स्पैन मेंटेन किए हुए हैं, लाइफ स्पैन को, बिकॉज दे आर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स फर्स्ट, एंड दे हैव द एडेप्टेशंस टू कम टू मेंटेन देमसेल्व्स इन द चेंजिंग इन्वायरमेंट. दैट्स वाई
they are different from all kind of animals, organisms, plants, किसी से भी अगर आप उसको compare करें तो if the variations in some individuals of a species they may be able to survive the changes, variations बेनिफिशियल भी हैं बिकॉज वो उनको सर्वाइव करने के लिए, उस चेंज इन्वायरमेंट में सर्वाइव करने के लिए एक हेल्पफुल या हेल्प मीडियम की तरह काम करती हैं. सो वेरिएशंस दे आर नेसेसरी फॉर द सर्वाइवल ऑफ द डिफरेंट स्पीशीज. ओके, so this was the topic about the reproduction, its definition, about the DNA changes, about the variations. So you got to know about what is reproduction, why is it important, what are the variations important for life, what is its importance, what was the conclusion. आप अब सब कुछ ये सब जान गए होंगे. Okay, so let's talk about the types of reproduction. So in how many categories the reproduction is being categorized. So if we talk about types of reproduction, so there are basically two main types. The one is asexual reproduction and the second one is sexual reproduction. Asexual and sexual both are the different terms, and in the asexual reproduction here only single parent is involved. Only single parent. This is the important point which you can get to know about the single parent. ये आपको बहुत ध्यान ही रखना पड़ेगा. You should be alert for this point that single parent is involved in the asexual reproduction, where in the sexual two parents are involved. This is the two parents are involved. Okay, and no gamete formation. अगर parent ही single है, देखिए ना gametes. What are the gametes? These are the reproductive cells. These are the reproductive cells. The one comes from the father, the male, and the next one will come from the female. After the fusion, the new progeny will appears. But if the parent is single, then how does the gamete formation occurs? How does it takes place? So this method is called the asexual, in which a single parent is involved and the reproduction occurs. Here no division, no cell division. Meiosis and mitosis are the cell divisions. They are the cell divisions. Okay, so no meiosis happens, as you all know, and if you don't know, so from now you should know about meiosis. It only occurs in the gametes, or we can say the reproductive cells. हमेशा gametic cells और reproductive cells में meiosis run करती है. If we talk about the stem cells वही जो अपनी ही similar copy, बिल्कुल identical भी similar भी copies को आगे promote करती हैं. These are the stem cells. If we talk about the skin cells, these are the stem cells which generate into a new cell. वो जो एक organism की नई cell में convert कर देती हैं. बट अगर हम reproductive cells की बात करें, ये सिर्फ reproduction के टाइम पे ही cells होती हैं जिनके अंदर meiosis रन करता है. एंड जो आपकी दूसरी cells होती हैं stem cells, जो बिल्कुल सिमिलर कॉपी, आइडेंटिकल कॉपी प्रमोट करती हैं, उनको हम स्टेम सेल्स कहते हैं, जिनके अंदर माइटोसिस रन करती है. आई गेस आपने मियोसिस एंड माइटोसिस यानी कि सेल डिविजन्स 9th क्लास में स्टडी किया होगा. सो यू कैन टेक अ लुक ऑन द सेल डिविजन पार्ट ऑल्सो. इन दिस मैथड नो मियोसिस हैपन्स, सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व and the lacking of the gamete formation. But while in case of sexual, it is just opposite to the asexual. Here two parents are involved, gamete formation takes place, and meiosis occurs during the gamete formation, which is the important step of sexual reproduction. Alright, so these are the types of asexual reproduction. The first one is the fission. Fission means the breakdown, and the fission is also has a subparts, binary fission and the multiple fission. Binary fission yani into two cells, split into two cells. Multiple means splitting of a single cell into the multiples. The second type of asexual reproduction is budding. The third type is vegetative propagation, regeneration, fragmentation, and spore formation. And all of these types we'll gonna study in this chapter slowly and steadily. Alright, so these are the types of asexual reproduction which you should know about this very briefly, because all of these are very important for the board exam point of view. ये CBSE की तरफ से भी बहुत important है, and you should know about
द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑल्सो, कि एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन किस तरीके से होता है, क्यों होता है.